Good afternoon, students. Let us wait for another persons to join us. So only six students have joined us. Hello. Hello. So प्यारे बच्चों कैसे हो आप? आवाज कट कट के आ रही है अभी. ਨਾਲ ਕਦੀ ਜਾਲੀ ਚਿੱਟੀ ਰਹਿਣ ਦੇਣੀ ਫੇਰ ਲਾਲ ਕਰਤੀ ਚਿੱਟੀ ਖਰੀ ਸੀ ਜਮਾ ਲੈ People are joining us. ਸ਼ਾਮ So ਨੂੰ ਕੀ let ਧਰਨਾ ਫਿਰ join करने दो भी सभी को. ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ ਆਪਣੀ ਨੂੰ ਕਿਆ ਧਰਨਾ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ So background music है काफी. So प्यारे बच्चों, hope you all are well and doing great. It's your macroeconomics class of BCom second semester. So अभी तक सिर्फ 6 लोगों ने ही ज्वाइन किया है. फर्दर पार्टिसिपेंट्स को देखते हैं ऐड होने के लिए. So what we studied in our yesterday class, you all know that ki we just go through the syllabus of macroeconomics and we were discussing the concept of national income. So further उसी टॉपिक को कवर अप करते हुए I am just saying about the concept and component of national income. So let us wait for 1 to 2 minutes for further participants to join this session. Then we will continue. So here Manjeet Kumar, Simran, PS Priya, Pooja R, Rajan K and Palak are there, waiting for other persons so that they will join us for this wonderful session. So dear students, we were discussing the basic components of national income. What is what is national income? What are the various methods to calculate national income? And we will further continue this topic by discussing today the main components of national income.
So, as you all know that ki national income measures the total value of goods and services produced within the economy over a period of time. एक इकोनॉमी में पूरे साल में कितने प्रोडक्शन हुआ, कितनी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुई, उसकी जितनी भी वैल्यू है वो नेशनल इनकम में आती है. Again, I am repeating it. National income measures the total value of goods and services produced within the economy over a period of time. So, why is national income important? So, dear students, as we already discussed that measuring the level and rate of growth of national income is important to economists when they are considering economic growth and where a country is in the business cycle and changes to average life standards of the population. Looking at the distribution of national income, that is measuring income and wealth inequalities. Further, we studied the concept of GDP and GNP. As you know that these are the basic concepts of national income. While the acronym GDP stands for Gross Domestic Product, and it is defined as an aggregate measure of production equal to the sum of the gross value added of all resident institutional units engaged in production. Again, I am repeating, GDP is defined as an aggregate measures of production equal to the sum of the gross value added of the resident institutional units engaged in production. While one thing stands for GNP, gross national product. So gross national product is nothing but it is the market value of all products and services produced in 1 year by labor and property supplied by the citizens of a country. Further, personal income क्या होता है? Personal income is the total money income received by individuals and households of a country from all possible source before direct taxes. डायरेक्ट टैक्सेस लगने से पहले जितने भी पॉसिबल सोर्सेज से आपको इनकम जनरेट होती है वो पर्सनल इनकम है. तो प्यारे बच्चों, पर्सनल इनकम से ही हम पर कैपिटा इनकम भी निकाल सकते हैं. तो यू नो दैट कि per capita income of a country is derived by dividing the national income of the country by the total population of a country. कि per capita income is equal to पूरे देश की इनकम कितनी है डिवाइडेड बाय पूरे देश में पीपल्स कितने हैं. सो ये हम सारा किस में पढ़ते हैं, ये हम नेशनल इनकम के कंपोनेंट्स में पढ़ते हैं. तो नेशनल इनकम के मेजरमेंट के आपको भी पता है कि 3 मेथड्स हैं. हमने पिछली क्लासेस में पढ़ा प्रोडक्शन मेथड, इनकम मेथड एंड एक्सपेंडिचर मेथड. यस बेटा, वैसे मैं धीरे ही बोल रहा हूँ. प्यारे बच्चों, हम बात कर रहे हैं प्रोडक्शन मेथड की. 3 मेथड्स हैं, प्रोडक्शन मेथड्स हैं, इनकम मेथड है एंड एक्सपेंडिचर मेथड है. किसी भी नेशनल इनकम निकालने की. गेट सर्टेन पीपल्स आर ज्वाइनिंग अस नाउ. सो साक्षी शर्मा बेटा टाइम पे आया करो क्लास पे. ऑलरेडी इट्स 2:15. सो यू ऑल नो दैट कि it's a time to study इकोनॉमिक्स. ऑलरेडी आपको मॉर्निंग में ही टाइमिंग का बता दिया जाता है कि इस पर्टिकुलर टाइम पे आपकी क्लास लगेगी. समटाइम्स देयर आर प्रॉब्लम्स इन हाउस कि यू आर नॉट अवेलेबल एट पर्टिकुलर टाइम, but yet for the sake of your convenience, your lectures have been recorded, and after a few days you will get a updated list of recorded lectures in YouTube. You may just continue from there also, but yet try to come in time. So now we will be discussing the concept of, हमने 4 चीज़ें पढ़ी. हमने पढ़ा GDP, GNP, पर्सनल इनकम and per capita income. So GDP stands for, GDP is defined as an aggregate measure of production equal to the sum of the gross values added of all resident institutional units engaged in production. I will speak it slowly so you can easily understand. GDP is defined as an aggregate measure of production equal to the sum of the gross value added of a resident institutional units engaged in production. And and gross थोड़ा शोर है पीछे. And gross national product is the market value of all the products and services produced in 1 year by labor and property supplied by the citizens of the country.
फिर बेटा पर्सनल इनकम की बात की। पर्सनल इनकम होता है कि हमारी जो इनकम जो ऑल ओवर सोर्सेज से हमें रिसीव होती है, हाउस होल्ड्स को जो इनकम रिसीव होती है ऑल ओवर सोर्सेज से बिफोर डायरेक्ट टैक्सेस, वो पर्सनल इनकम इनकम है। And per capita income PCI, per capita income of a country is derived by dividing the national income of the country by the total population of a country. नेशनल इनकम को टोटल पॉपुलेशन ऑफ कंट्री से जब हम डिवाइड करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाती है, टोटल पर कैपिटा इनकम आती है। सो इन अवर लास्ट क्लास डे बिफोर यस्टरडे वी डिस्कस्ड कि तीन चीज़ें होती हैं, प्रोडक्शन मेथड, income method and expenditure method. So dear students, as you know that कि production of goods and services generates income. जब मैं प्रोडक्शन करता हूँ गुड्स एंड सर्विसेज का तो इट जनरेट्स इनकम। प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज जनरेट्स इनकम एंड इनकम गिव राइज टू डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज। जो इनकम है उससे हम नए गुड्स एंड सर्विसेज लगाते हैं। डिमांड फर्दर एक्सपेंडिचर को जन्म देती है एंड एक्सपेंडिचर फर्दर गिव्स राइज टू द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। So there is a circular flow of production, income and expenditure. प्रोडक्शन, इनकम और एक्सपेंडिचर का एक सर्कुलर फ्लो होता है। उसी सर्कुलर फ्लो के थ्रू हम नेशनल इनकम निकालने के भी तीन मेथड्स यूज करते हैं। So on the basis of these three flows, national income can be analyzed as a flow of goods and services, as a flow of incomes, as a flow of expenditure on goods and services. So प्रोडक्ट मेथड में मैंने आपको कल समझाया था, फाइनल प्रोडक्ट अप्रोच आती है। अगर किसी को पता है तो बता सकता है, नहीं तो फर्दर आई विल कंटिन्यू। प्रोडक्ट मेथड कैसे निकालते हैं मैंने उस दिन फार्मूले के थ्रू भी आपको समझाया था। सबसे पहले वी टेक जीडीपी एट मार्केट प्राइस। हम यूजुअली क्या करते हैं, हम जीडीपी लेते हैं मार्केट प्राइस में। द मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द कंट्री गिव्स द एस्टिमेट ऑफ जीडीपी एट मार्केट प्राइस। तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस को लेने के बाद हम क्या करते हैं, इसमें NFY डाल देते हैं, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड इसमें डाल देते हैं, और नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को हम इसी में जब ऐड करते हैं, जब हम इसमें ऐड करते हैं तो वो क्या आता है, वो आपकी नेट GNP आता है, GNP एट मार्केट प्राइस। So the addition of the net factor income from abroad in GDP at MP gives gross national product at market price. Sorry, mic बंद हो गया। The little bit network problem is there. So क्या बोल रहा था मैं, the market value of all final goods and services produced within the country gives the estimate of GDP at market price. तो हमारे को जब एस्टिमेट पता लग जाता है जीडीपी एट मार्केट प्राइस में, देन वी ऐड इसमें नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। द एडिशन ऑफ नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड इन जीडीपी एट एमपी एंड एनपी गिव्स। इसमें क्या होता है, जीडीपी एंड एनपी में क्या गिव्स होता है, हमारे को नेट फैक्टर फ्रॉम इनकम फ्रॉम अब्रॉड आ जाता है। सो नेक्स्ट हम इसमें बात करेंगे जीडीपी के फर्दर एडिड टू इट। फिर हम इसमें क्या करते हैं, द डिडक्शन ऑफ डेप्रिसिएशन फ्रॉम ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस प्रोवाइड्स नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। द डिडक्शन ऑफ डेप्रिसिएशन फ्रॉम जीएनपी प्रोडक्ट में, जब हम इसमें फाइनल प्रोसीजर में जब हम इसमें डेप्रिसिएशन माइनस करते हैं, मैंने आपको कल भी समझाया था कि जब ग्रॉस से हमारे को नेट जाना पड़ता है, वी यूजुअली डिडक्ट डेप्रिसिएशन। So the deduction of depreciation from GNP at market price provides net national product at market price। और इसी में जब हम NIT को प्लस कर देते हैं तो नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट आ जाता है। सो अगर इसको कंप्लीट फॉर्मूले में लिखना है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, GDP एट MP प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड इज इक्वल टू ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, and the deduction of depreciation from gross national product at market price provides net national product at market price, and the deduction of net indirect taxes from NNP at MP gives net national product at factor cost.
So in your previous classes, you also discussed one problem we face while calculating national income from this method. अगर हम इस मेथड से नेशनल इनकम को कैलकुलेट करते हैं, जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है अभी, अगर हम इस मेथड से कैलकुलेशन करते हैं तो हमारे पास आ जाता है, क्या आता है हमारे पास, प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग फेस होती है। सो प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग जब हमारे को फेस होती है तो किस वे से फेस होती है, नेटवर्क इशू इज देयर, 2 मिनट। The calculation of national income through final product approach consider the market value of final goods and services, and the value of intermediate goods is not included in it. If the value of intermediate goods are considered, it will involve the problem of double counting. Double counting means consideration of certain item more than once, which leads to overestimation of national income. सेकंड मेथड आपको पता है वो है इनकम मेथड। तो मैं आपको फिर से एक बार रिवीजन करवा देता हूँ प्यारे बच्चों। हमने सबसे पहला मेथड पढ़ा प्रोडक्शन मेथड। प्रोडक्शन मेथड या प्रोडक्ट मेथड में हम क्या करते हैं, सबसे पहले जीडीपी लेते हैं। तो जीडीपी तो आपको पता है क्या होती है, जिनको नहीं पता तो वो प्रीवियस लेक्चर्स देख सकते हैं, उसमें हमने अच्छी तरह से जीडीपी का कंपोनेंट पढ़ा है, पूरा कंसेप्ट पढ़ा है कि रियल वे में जीडीपी क्या होती है, जीडीपी कैसे कैलकुलेट की जाती है। फिर हमने एक दिन इसकी जीडीपी के हिसाब से इंडिया की रैंकिंग्स भी देखी थी। जीडीपी में इंडिया का हमने देखा था कि कितना योगदान है, एंड व्हाट इज़ द रैंक ऑफ आवर इकोनॉमी एज पर जीडीपी। लास्ट ईयर हमारी जीडीपी माइनस में भी चली गई थी। सो प्यारे बच्चों, फाइनली हम सबसे पहले क्या करते हैं, हम जीडीपी एट मार्केट प्राइस देखते हैं, तो उसमें नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को ऐड कर देते हैं। तो तब हमारे पास जो आता है वो आता है हमारे पास ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। फिर अगर हम उसमें से डेप्रिसिएशन को माइनस कर दें तो नेट नेशनल प्रोडक्ट आता है, और अगर उसमें हम नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को ऐड कर दें तो हमारे पास नेशनल इनकम आती है, और नेशनल इनकम इज ऑल्सो नोन एज नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। तो फिर इसमें प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग फेस होती है, एज आई टोल्ड अर्लियर कि डबल काउंटिंग जस्ट मींस, इट ओनली मींस consideration of certain item more than once, which leads to overestimation of national income. It usually leads to over it leads to overestimation of national income। कई बार कई चीज़ों को हम बार बार काउंट कर लेते हैं। डियर स्टूडेंट्स, यू में जस्ट आप अपने स्क्रीन की ब्राइटनेस को थोड़ा कम कर दीजिए। सो सेकंड है इनकम मेथड। इट इज द सम ऑफ ऑल इनकम डेराइव्ड फ्रॉम प्रोवाइडिंग द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हमने पढ़े थे, एंड फैक्टर ऑफ पेमेंट्स पढ़ी थी। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप। तो ये क्या है, ये फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है। इस पे हमारे को क्या आती है, प्रोड्यूसर्स को, प्रोड्यूसर्स तो लैंड पे लेबर, लैंड पे रेंट देते हैं, वेजेस को लेबर देते हैं, कैपिटल पे इंटरेस्ट मिलता है, एंटरप्रेन्योरशिप अर्न्स ओवरऑल प्रॉफिट एंड लॉसेस ऑफ द बिजनेस। बट डियर स्टूडेंट्स, तो ये सब क्या है, ये इनकम मेथड है। हमने कल नहीं, हमने इन अवर लास्ट क्लास वी डिस्कस्ड प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शियरी सेक्टर डे बिफोर यस्टरडे। सो वी डिस्कस्ड कि वो तीनों सेक्टर्स जो इनकम आती है, चाहे प्राइमरी सेक्टर हो, चाहे सेकेंडरी सेक्टर हो, चाहे टर्शियरी सेक्टर हो, वो तीनों सेक्टर्स की इनकम को ऐड कर दिया जाता है। तो इट इज द सम ऑफ ऑल इनकम डेराइव्ड फ्रॉम प्रोवाइडिंग द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। It includes the wages and salaries, rent, interest, and profits within a country in a given year. So, what are the various steps in income method? Income method में कुछ steps होते हैं। कौन कौन से steps होते हैं ऐसे? Firstly है, it obtains net. Firstly क्या करते हैं? You have to obtain the NDP at factor cost by summing up factors payment paid in form of wages, salaries, rent, interest and profit by all production units of the sectors in the country. अगर मैं फिर से रिपीट करूँ, firstly you have to obtain net domestic product at factor cost, NDP at factor cost निकाल लेंगे, by summing up factors payment paid in the form of wages, salaries, rent, interest and profit by all production units of all sectors in the country. Then add net factor income from abroad in net domestic product। इसी में हम क्या ऐड कर देते हैं, net factor income from abroad को ऐड कर देंगे। एंड
फाइनली हमारे पास क्या आ जाएगा, एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट आ जाएगा। यानी कि सिंपल सी बात है, सभी सेक्टर्स की इनकम को ऐड कर देंगे हम, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शियरी सेक्टर, और उसमें हम क्या करेंगे, उसमें नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को जब ऐड कर देंगे, देन वी यूजुअली गेट नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। आई एम रिपीटिंग अगेन एंड अगेन डियर स्टूडेंट्स कि नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट को ही नेशनल इनकम कहा जाता है। अगर आपको बोलूँ एनएनपी एट एफसी इज व्हाट, then you may easily see that ki it's all about net national product at factor cost is national income। होप आपको आवाज़ अब क्लियर आ रही होगी, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम है, डाटा स्पीड भी मेरी कम है इस टाइम। थर्ड मेथड इज एक्सपेंडिचर मेथड। अब एक्सपेंडिचर मेथड क्या होता है? एक्सपेंडिचर मेथड मेजर्स नेशनल इनकम एज एग्रीगेट ऑफ ऑल द फाइनल एक्सपेंडिचर्स ऑन जीडीपी। जितने भी आपके फाइनल एक्सपेंडिचर्स है जीडीपी पे हुए आपके देश में, जितने भी एक्सपेंडिचर्स है, अब एक्सपेंडिचर्स कई तरह के होते हैं। मेनली बेसिस हम मेनली बेटा हम दो तरह के एक्सपेंडिचर्स की बात करते हैं। एक हम बात करते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर की, एक हम बात करते हैं इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर की। सो कंजम्पशन पे या हम इन्वेस्टमेंट पे करते हैं, तो दो तरह के एक्सपेंडिचर्स होते हैं। अब मान लो आपकी क्लास में एक लड़का है मंजीत कुमार, ठीक है, मंजीत कुमार है, इसके पास 100 रुपये है इस टाइम। A person whose name is Manjeet Kumar is in this meeting and suppose he have only 100 rupees। तो उसके पास 100 रुपये है, तो उसने क्या किया, 50 रुपये का कोल्ड ड्रिंक पी ली, कंज्यूम कर लिए 50 रुपये, और 50 रुपये इसने बैंक में सेव कर दिए, इन्वेस्ट कर लिया, ताकि इसको जब इकट्ठा पैसा मिलेगा तो ही मे गेट इंटरेस्ट। तो अब देखो उसने सी स्टैंड्स फॉर कंज्यूम कितना किया, उसने 50 रुपये, इन्वेस्ट कितना किया 50 रुपये, इन दोनों को ऐड कर देखो तो इनकम आ जाएगी। तो तभी देखो हमारा इनकम और एक्सपेंडिचर मेथड भी सेम चल रहा है कि इधर इसकी इनकम है पर ऐसे वो एक्सपेंडिचर्स भी है, तो दोनों बराबर है, तो तब भी हम नेशनल इनकम निकाल सकते हैं। तो वी कैन यूजली ट्रीट दिस टॉपिक एज इन दिस एक्सपेंडिचर मेथड। एक्सपेंडिचर मेथड में हम क्या करते हैं, expenditure method measures national income as aggregate of all the final expenditure on goods and services। फिर है this is the sum of expenditure made for final consumers goods and investment demand and for net export। So therefore the sum of total income equals to the sum of final expenditure incurred on consumption goods and the sum of investment goods। Simply y is equal to c plus I। सो वो आपको स्क्रीन शेयर हो रही होगी और आपके जो स्क्रीन पे अभी दिख रहा है वो सब कुछ है। नेटवर्क इशू होगा बेटा, बाकी यहाँ से तो चलो लेट मी कंक्लूड, आपको बाद में लिंक मिल जाएगा इसका। सो अभी तक हमने पढ़ा है 3 मेथड्स, इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड एंड प्रोडक्ट मेथड। किसी को नहीं हो रही स्क्रीन शेयर? let me try। Actually there is a certain network issues, so that's why it's not being visible, so you may understand what I am saying। after all I will send the link of your YouTube classes, जितनी भी क्लासेस मैंने लगाई है उसका लिंक मैं आपको भेज दूंगा एक प्रॉपर फॉर्मेट में। एक्चुअली वेबसाइट पे अपलोड हो जाएगा ये कॉलेज के। सो एक्सपेंडिचर मेथड मेजर्स नेशनल इनकम एज aggregate of all the final expenditures on GDP in an economy during a year। एक देश में पूरी इकोनॉमी में प्रोडक्शन बनाने में जितना भी खर्चा हुआ वो जीडीपी में आता है। इतना आपको क्लियर हो गया होप। सो अगर हम नेक्स्ट बात करें स्टेप्स इन जस्ट वेट, स्टेप्स इन एक्सपेंडिचर मेथड।
एक्चुअली वन देयर इज ए नेटवर्क इशू प्रॉब्लम इज देयर, और थोड़ा मौसम भी काफ़ी ख़राब है, सो मे बी आपको आवाज़ भी कट कट के आ रही होगी। और आवाज़ क्लियर है मेरी? पूजा बेटा, आवाज़ क्लियर आ रही है? ओके ओके ओके। सो तीसरा मेथड है एक्सपेंडिचर मेथड। मैं आपको कोशिश करूंगा कि इसकी बुक प्रोवाइड कर दूं मैं, प्लस टू की मैक्रो इकोनॉमिक्स में बेसिक्स है इसके, जीडीपी, एनएनपी के, नेशनल इनकम के सारे बेसिक्स उसमें अच्छी तरह से दिए हुए हैं। बट ऑल्दो अगर आपको कुछ क्वेरीज होती है आप मुझे पूछ लिया करो। जीडीपी एट मार्केट प्राइस में हम क्या करते हैं, ग्रॉस नेशनल एक्सपेंडिचर एंड मार्केट प्राइस विच द सम ऑफ फाइनल प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट फाइनल। देखो पांच कौन कौन से खर्चे होते हैं। एक तो प्राइवेट लोग खर्चा करते हैं, प्राइवेट इन दी सेंस कि हम हाउस होल्ड खर्चा करते हैं, तो हमारे सारे खर्चे ऐड हो जाएंगे, प्लस गवर्नमेंट के सारे खर्चे ऐड हो जाएंगे, फिर प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स के सारे खर्चे ऐड हो जाएंगे, फिर नेट एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट का जो बैलेंस होगा वो ऐड या डिडक्ट हो जाएगा। So an addition of net factor from income to abroad from abroad to GDP at MP provides gross national product at market price. But some precautions have to be taken while calculating the income from this method. So firstly, expenditure on second-hand goods should be excluded in it because such expenditure on the goods is not considered to be expenditure on currently produced goods. समझ आया क्या बोला मैंने अभी? जितने भी सेकंड हैंड गुड्स हैं, अब मैं बात कर रहा हूँ एक्सपेंडिचर मेथड की। एक्सपेंडिचर मेथड में क्या होता है, एक्सपेंडिचर मेथड में हम कहते हैं कि जितने भी आपके खर्चे हुए, एक्सपेंडिचर हुए, फॉर्म मान लीजिए अब आपने जो प्रोडक्शन किया है उसको, प्रोडक्शन जो आपने किया है वो सेकंड हैंड गुड्स के लिए नहीं होगा। मतलब पहले जो वो प्रोडक्शन बना है, अब मान लीजिए 2019 में कोई चीज़ बनी है, अब वो 2021 में अपडेट कर रहे हो, थोड़ी-सी अपडेट कर रहे हो, तो वो जो उसका सेकंड हैंड गुड्स में जो भी हम खरीदते हैं, तो आप बोलोगे सर सेकंड हैंड गुड्स है। भाई आप एक्सपेंडिचर मेथड की बात कर रहे हो। आप बोल रहे हो कि जो भी सरकार खर्चा करती है, जो भी इंडिविजुअल लोग खर्चा करते हैं, जो प्राइवेट कंजम्पशन होता है या नेट एक्सपोर्ट्स होते हैं, वो सारे खर्चे होते हैं। कई बार हम सर सेकंड हैंड गुड परचेज़ करते हैं कि जो मार्केट में पहले से ही गुड्स परचेज़ हुई है, अब दोबारा उसको परचेज़ कर लें, तो क्या वो दोबारा नेशनल इनकम में आएगा? ये भी दिक्कत है। So expenditure on such second hand goods should be excluded. It is because such expenditure on the goods is not considered to be expenditure on currently produced goods. हम वो इसमें नहीं करते। Then expenditure on purchase of new or old shares and bonds should be excluded because they are not payments for goods and services. प्यारे बच्चों, आज मैं आपको इसका सारा theoretical concept समझाऊंगा। मुझे पता है कि let the concepts are more typical. सो इसमें क्या है, हम इसको थोड़ा ऑनलाइन करेंगे, ऑनलाइन इन द सेंस कि विद द हेल्प ऑफ व्हाइट बोर्ड करेंगे और प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को अच्छी तरह से समझेंगे, क्योंकि मैक्सिमम पर्सन्स जस्ट रिलाई ऑन थ्योरेटिकल सब्जेक्ट, थ्योरेटिकल कंसेप्ट, बट वी विल स्टडी द प्रॉपर कंपोनेंट्स ऑफ दिस सब्जेक्ट। प्रैक्टिकल क्वेश्चंस न्यूमेरिकल क्वेश्चंस के भी यहाँ पे करेंगे। सेकंड, इसमें जो प्रिकॉशंस दिखते हैं, एक्सपेंडिचर ऑन द परचेज ऑफ न्यू और ओल्ड शेयर्स एंड बॉन्ड्स शुड बी एक्सक्लूडेड बिकॉज दे आर नॉट पेमेंट्स फॉर गुड्स एंड सर्विसेज, एंड गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इन द फॉर्म ऑफ ट्रांसफर, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इन द फॉर्म ऑफ ट्रांसफर, what transfer payments है वो should be excluded because these payments do not make any contribution in the flow of goods and services. Finally, the expenditure on intermediate goods and services should also not included. Certain peoples are joining now. I didn't know who is he or she. तो ओवरव्यू पढ़ने के लिए हम बात कर रहे हैं। नेटवर्क इशू आ रहा है, यहाँ पर शो हो रहा है कि 13 पीपल्स आर ज्वाइनिंग, बट ओनली सिर्फ 6 पर्सन्स हैं हमारे इस सेशन में, इंक्लूडिंग मी। एंड डियर स्टूडेंट्स,
जो फर्दर है हम जो बात करेंगे वो हम करेंगे नेशनल इनकम के प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स की अपने नेक्स्ट क्लास में। सो कल हम कुछ पढ़ेंगे, इज द मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम इज एन इजी टास्क और डिफिकल्ट टास्क, व्हाट आर द वेरियस यूजेस ऑफ नेशनल इनकम इन स्टैटिस्टिक्स एंड प्रैक्टिकल कंसेप्ट से पढ़ेंगे, हर एक अप्रोच को अच्छी तरह से समझेंगे। बट ये था कि बेसिक आपको मैंने आज थोड़ा सा समझा दिया, जिसमें 3 मेथड्स का क्या-क्या यूज़ है। आपका प्रोडक्ट मेथड, इनकम मेथड एंड एक्सपेंडिचर मेथड। प्रोडक्ट मेथड किस काम आता है? प्रोडक्ट मेथड में हम ये देखेंगे कि पूरे ओवरऑल देश में कितना प्रोडक्शन हुआ, बाहर से कितना सामान आया, उन दोनों को ऐड कर देंगे। कुछ खर्चे होंगे वो माइनस कर देंगे, इनडायरेक्ट टैक्सेस प्लस कर देंगे, सब माइनस कर देंगे, डायरेक्ट टैक्सेस सब्सिडीज प्लस कर देंगे, नेशनल इनकम आ गई। इनकम मेथड में हम देखेंगे कि भाई प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शरी सेक्टर, तीनों सेक्टर से कितनी इनकम आई, प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड कितना आया, वो भी ऐड कर देंगे। इनकम मेथड से नेशनल इनकम निकल गई। और एक्सपेंडिचर मेथड में हम मेनली क्या करेंगे, सभी सेक्टर्स के एक्सपेंडिचर्स को ऐड कर देंगे। तो मैंने आपको बोला था पहले भी कि ये तीनों ही सर्कुलर फ्लो चलता है, कि चाहे आप बाजार में सामान बेचो तो वहाँ से भी हम निकाल सकते हैं कितने का सामान बिका, नेशनल इनकम है, या पूरे देश ने कितना पैसा कमाया वो इनकम मेथड है, और पूरे देश ने कितना खर्चा किया वो एक्सपेंडिचर मेथड में आता है। बट सभी मेथड से सेम आंसर तो नहीं निकलता, बिकॉज सभी मेथड्स हमारे को डिफरेंट डिफरेंट डाटा प्रोवाइड करते हैं। सो दैट्स ऑल अबाउट योर टूडेज क्लास। if you have any query you may raise your hand and ask anything you want to see want to know. um, I think due to network problem maybe certain people want to join but they are unable to join this class, and here stated that key people have been waiting in lobby. So you may exit now. Take care. We will meet in our next class where we will go through the practical concept of classes. Thanks a lot.